ओके जी। तो आज आपने बताया था टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी पे बात करनी है, और साथ हमने ऑफ कोर्स कंजेनिटल एनोमलीज को कुछ कवर कर लेंगे, और लाइकर वॉल्यूम एब्नॉर्मेलिटीज की कुछ आप लोग कहना चाह रहे थे। सो आज ठीक है, स्पेशली जो आज एमसीपीएस वाले उनका थर्ड को एग्जाम है। सो अगर कोई क्वेरीज है विल कवर दैट आल्सो। सो लेट्स बिगिन। जी, अगर अगर प्रेजेंटर है तो वी कैन स्टार्ट विद द केस, वरना फिर हम वैसे अदरवाइज स्टार्ट कर लेते हैं। किसी ने प्रेजेंट करना है तो वी कैन स्टार्ट विद कंजेनिटल एनोमली, और उसके साथ फिर हम आप आगे कंटिन्यू कर लेंगे। परसों एग्जाम वाले तो आई नो थोड़ा सा डरे होंगे, उसकी वजह ये है कि उनको ये होगा कि हमारा कॉन्फिडेंस ना उल्टा खराब हो जाए। लेकिन डरने की बात नहीं है, दिस इज द प्लेटफॉर्म कि उसके ऊपर आप करो डिस्कस सारा कुछ, और जितना बोलोगे जितना डिस्कस करोगे उतना ही आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, और वो चीज एग्जाम में कहीं ना कहीं आपको हेल्प कर जाएगी। सो कोई भी अगर वॉलंटियर करना चाहता है बताएं। मैं करूँ? जी कोमल, श्योर। ओके, सो वी कैन स्टार्ट। मैं आपके पास केस है, वरना मैं दे देती हूँ आपको। आई कैन गिव यू द सिनेरियो। नो मैम, ओके। केस तो नहीं मैम, ऐसे ही हाँ। मैम। So patient is 35 years of age. She's primi gravida, and it is her second marriage. And she has come with the ultrasound report of baby showing hydrocephalus at 28 weeks. Okay. First of all, I will. Okay. First of all, I will introduce myself. I will ask her. Then I will take her Structured discussion है introduction. जी। जी। I will ask her name, her age, her occupation, her education status, and married for and last menstrual period. Then I will ask her, as it is her second marriage, is she having any baby in the first marriage or not? And married for in this marriage. Moreover, then I will ask her about her menstrual regularities, whether periods were regular or irregular. She conceived spontaneously or through medication. She confirmed her pregnancy with UPT. जी। जी कोमल। आई थिंक कोमल का कनेक्शन का प्रॉब्लम हो गया। शी वॉज डूइंग वेल। सो उतनी देर अगर किसी और ने करना है स्टार्ट, या वॉलंटियर, या इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, या एनीथिंग, तो प्लीज बताओ। मरियम, आप कमेंट कर रहे Ma'am, हो, यू कैन ट्राई। again. हाँ कोमल जी। Ma'am, I'm here again. जी श्योर, कंटिन्यू करें प्लीज। जी जी. Then I will ask her about yes, ma'am. Ma'am, I will ask her about history of flu-like symptoms like rash, fever in the first 3 months. Then I will ask her about her dating scan. Moreover, I will ask her about her anomaly scan. Then I will ask her whether what is her diet, what she takes. Is it she is pure vegetarian, or she take meats as well. I will ask her about and congenital and जी। बड़ी आपकी आवाज का प्रॉब्लम हो रहा है। सो गुड, बट यू आर स्लो।
किसी ने और करना है तो कर लें, ताकि फिर हम देख लेंगे। मरियम, व्हाई डोंट यू ट्राई? आप जल्दी जल्दी पॉइंट्स बताओ, फोकस्ड क्या क्या आप करोगे इस केस में। Okay, madam. First गुड। of all, I will introduce myself to the patient. I will take the patient's introduction. I will, as age is given, I will confirm her name, education status, and married since how long. And as he is married twice, so have she ever conceived from the first marriage or not? And then in this pregnancy, how she conceived, either it was a planned, unplanned pregnancy. Madam, आवाज आ रही है? ये आ रही है। Either it was a planned unplanned pregnancy, or did she have dating scan done in the first trimester of pregnancy? Either it was the single pregnancy or twin, and have she taken folic acid, or does she have any history of fever, flu, rash in her first 3 months of the pregnancy, and has she the anomaly scan done or not? And then I will ask either I will inquire about her diet, and does she have any history of epilepsy, or does she have any history of anomalous baby in her family before, or any previous history of any congenital anomaly, and is she on any drug like antifolate, methotrexate, etc. And then I will inquire about her menstrual cycle, like what was her LMP and how was the cycle regularity and frequency. Then I will inquire about her past medical history, like does she have any history of hypertension, diabetes, or any chronic diseases. And I will inquire about past surgical history, like any surgical intervention done or not, any history of allergy, or any history of smoking. Then after history, I will go toward the examination. On examination, I will be looking for general physical examination, in which I will calculate her body mass index and her blood pressure, pulse, and temperature. And I will looking for the sign and symptoms of anemia, pallor in conjunctiva, nail bed, and undersurface of the tongue, koilonychia, clubbing. And I will be looking for her thyroid examination, and then CVS and respiratory examination. And as she is 28-week pregnant, I will do her abdominal examination on inspection. I will be looking for linea nigra, stria gravidarum, and any visible fetal movement. And then I will be doing palpation to look for some physiofundal height and amount of liquor, estimated fetal weight, and fetal heart rate. And then on examination, I will be asking first for baseline investigations, in which blood group with Rh factor and CBC, including HP, platelet, and TLC, and then her viral serology, hepatitis B surface antigen, anti-HCV, and HIV serology, and midstream urine for protein, glucose, and pus cells, and random fasting blood sugar, or if not available, then random. Then specific investigation, I will be inquiring for dating scan, and then anomaly scan if available, and recent scan with to confirm the anomaly, and other parameters like amount of liquor and amount of liquor, and estimated fetal weight, presentation, and placental localization. And as she presented with the hydrocephalus on ultrasound, then I will be looking for exact ventricle diameter, cortical thickness, and BPD, and any intracranial tumor or any other associated anomaly. And I will be inquiring of HbA1c, or if torch done or not. वेरी नाइस, यू आर वेरी गुड। आई थिंक यू कवर्ड एवरीथिंग। मुझे बहुत अच्छी लगी आपकी प्रेजेंटेशन, आपके टाइम मैनेजमेंट और स्पीच, माशाल्लाह इट वाज वेरी वेरी क्लियर। और इसी तरह आपने करना है, बट यू जस्ट नीड टू बी कॉन्फिडेंट। उसकी वजह ये है कि आप वॉलंटियर करो, मतलब यू आर गुड उस, और जितना बोलोगे और प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपकी लेटर ऑन प्रेजेंटेशन बेहतर होगी। सो वेल डन, अच्छी बात है। सो यू डिड वेल, यू कवर्ड ऑल द कॉजेज। ये एक स्ट्रक्चर्ड हमने डिस्कशन की है ताकि अभी हमारा ये कवर हो जाए टॉपिक। सो इसके अंदर आपने सारी कॉजेज, सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट है। और थोड़ा सा इस पेशेंट में एक और चीज ये भी होगी कि ये बिकॉज शी इज प्राइमरी ग्रेविडा एंड शी इज एट द एज ऑफ 35, आपने हाइड्रोकेफेलस और एनोमली और प्रेगनेंसी को तो आप अच्छी बात है लेके चले हो, बट एट द सेम टाइम आपने
इसकी थोड़ी सी ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री के, बिकॉज एज ज्यादा हो गई है, प्रीवियस प्रेगनेंसी, प्रीवियस मैरिज में ऑब्वियसली शी इज प्राइमरी ग्रेविडा, तो प्रीवियस में क्यों नहीं हुई थी कोई प्रेगनेंसी, कोई सब फर्टिलिटी के बाद कंसीव किया, और अब वो सारी चीजें भी इसलिए कवर करनी है क्योंकि अब पहले ही नॉर्मलस बेबी है, तो आगे भी तो इसकी ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री कितनी मैटर करती है, और ये आपके हर चीज की डिसीजन मेकिंग में हेल्प आउट करेगा। तो एक हमेशा थोड़ा सा अगर आप ब्रॉडर, क्योंकि देखो अब वही बात है कि शायद हाइड्रोकेफलस तो जब एग्जाम देने जा रहे हैं उसको आता ही होगा, दीज आर फ्यू टॉपिक्स जो जिस तरह हम कहते हैं ना, फाइब्रॉइड एनीमिया एक्सेट्रा एक्सेट्रा, मतलब कि ये वो टॉपिक्स हैं जो 90% लोग तैयार ही करके जाते हैं, और इसलिए आप, लेकिन पास 90% नहीं होते एग्जाम में, पास शायद 10% होते हैं। वो क्यों है? क्योंकि वो जो 10% है दे आर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, उनकी कुछ ना कुछ बात में, उनकी किसी प्रेजेंटेशन में, या उनकी जो पूरी चीज जो वो कन्वे करें एग्जामिनर को, उसमें वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई चीज है जिसकी वजह से वो ज्यादा स्कोर कर रहे हैं और वो पास हो रहे हैं। जैसे मैं कहती हूँ कि आपने 60% की तैयारी नहीं करके जानी है, आपने 70% की तैयारी करके जानी है। तो इस वजह से आप जो हो, उसके लिए थोड़ा सा डिफरेंट होने के लिए आपने एक फोकस, इट्स नॉट ओनली फॉर एग्जाम, अगर आपके पास क्लिनिक पे पेशेंट आई है और आपने उसके हर एस्पेक्ट को कवर नहीं किया, फर्टिलिटी को, बेशक शी इज प्रेग्नेंट, बट आपने ये कवर नहीं किया कि भी उसने मैरिज के फॉर एग्जांपल 8 साल के बाद कंसीव किया है, तो पिछले 8 साल क्यों नहीं किया, वो आपकी इवन अभी की ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री और मैनेजमेंट को बहुत अफेक्ट करेगा। इसी तरह मे बी शी हैड पीसीओ एक्सेट्रा, सो आपने उसके एक ब्रॉडर, जब तक व्यू को कवर नहीं करोगे तो आपकी क्लिनिक की मैनेजमेंट ही इनकम्प्लीट होगी। शायद कोई पेशेंट ठीक ठाक निकल जाए, लेकिन मेजोरिटी अगर इनकम्प्लीट आप मैनेज करोगे तो उसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ रह जाएगी, एंड दिस इज द डिफरेंस जो कि एक आम जीपी में और एक स्पेशलाइज्ड बंदे में डिफरेंस लाता है। सो इसीलिए एग्जाम में भी यही रिक्वायर्ड है, तो आपका एग्जाम में यही बात नोट की जा रही होती है। तो आपने इस चीज को वो नहीं करना कि वो कवर ना करो, ठीक है? तो आप यू ओके, गुड। अदरवाइज मरियम यू वर वेरी वेरी गुड, आपकी इन्वेस्टिगेशंस वर गुड, बट मुझे वो थोड़ी सी हैphazard लगी। पहले ब्लड टेस्ट, फिर अल्ट्रासाउंड, फिर ब्लड टेस्ट, बट उस इट वाज नॉट अ बिग ब्लंडर, लेकिन इसको और थोड़ा सा ऑर्गेनाइज कर लो वो बेहतर है। HbA1c और टॉर्च, डोंट से टॉर्च स्क्रीनिंग, यू बिकॉज ये एक ऐसा केस है जिसके अंदर फिर कंप्लीट टॉर्च की आप फिर बात करो, आप बताओ कि आपको रुबेला का क्या चाहिए, आपको CMV का क्या चाहिए, आपको हर्पीस का क्या चाहिए, वो फिर आपका एक तरह से कंप्लीट जो है ना आपकी, आप बोलो तो, क्योंकि इसमें आई थिंक इट इज इम्पोर्टेंट, तो वो आप करोगे कवर, ठीक है? सो दैट कंट्रीब्यूट करो जरूर। जी, जी रहेगा, कुछ शायद कहना है आपने? ओके, गुड। तो आई थिंक इट वाज रियली गुड। तो हम प्रोसीड कर सकते हैं। अगर इन्वेस्टिगेशंस की बात करो तो इन्वेस्टिगेशंस में हर ब्लड ग्रुप इज बी नेगेटिव, और हर CBC इज HB इज 10 मिलीग्राम्स पर डेसीलिटर। और क्या पूछना आपने? HbA1c इज नॉर्मल, अल्ट्रासाउंड शोज मॉडरेट हाइड्रोकेफलस। और बताओ और क्या चाहिए मरियम? मैडम एनीमिया की टाइपिंग 10 HB के साथ हुई है, MCV, MCH, MCHC। माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक है। ओके। एंड मैडम अल्ट्रासाउंड पे BPD और कॉर्टिकल थिकनेस और वेंट्रिकुलर डायमीटर। अब इसकी मेजरमेंट आप देख लो, कॉर्टिकल थिकनेस इज मोर देन 5 मिलीमीटर्स, और वेंट्रिकुलर डायमीटर इज नॉट मेंशन्ड, और ओवरऑल इट्स इम्प्रेशन इज मॉडरेट हाइड्रोकेफलस। ओके। एंड मैडम अदर एसोसिएटेड एनोमलीज हैं इसके अंदर? नहीं, अल्ट्रासाउंड नहीं है। ठीक है। So after history examination and investigation, I will counsel my patient that she is having 28-week pregnancy with moderate hydrocephalus. I will tell her that I will follow her pregnancy with the serial BPD, with the serial BPD, and once her BPD has reached to 9.8 centimeter or above that, then I will
Madam, I will counsel her that she is having as she is primary gravida and 28 week with moderate hydrocephalus. I will explain her the risk. I will involve the MDT like a pediatric neurosurgeon. I will take their opinion and I will monitor this pregnancy on 2 to 4 weekly scan. In which I will check her BPD and either it is progressing or either it is regressing. And then if everything is fine, as she is having a good cortical thickness, and so I will take this pregnancy till term. And then if her BPD is increasing more than 9.8 centimeter, or if everything remain normal, then I will plan induction of labor. And ठीक है, ओके फाइन। और किसी ने बताना है? देखो मैं आपको ना थोड़ी सी टिप्स देती हूँ फॉर मैनेजिंग कंजेनिटल एनोमली इन एग्जाम इन मैडम पर्टिकुलर। जी अस्सलाम वालेकुम मैडम, इसका जरूर स्कैन भी एक दफा रिपीट होगा और एमडीटी में हमारे पास पीट्स इनपुट होगा, वो भी इंक्लूड गुड, होंगे। वेरी गुड। और हमें देखना पड़ेगा इसके साथ और एनोमली से एसोसिएटेड तो नहीं है। वो उन्होंने बात की थी। ठीक है, गुड गुड, अच्छा बताया आपने श्रेय। बातें आप लोग ठीक कर रहे हो, लेकिन इसको मजीद ऑर्गेनाइज करने का, देखो मैंने आपको हर क्लास में कहती हूँ कि एग्जाम के अंदर एक ऐसी बात हो जाती है कि यू नीड टू नो एवरीथिंग ऑन योर फिंगर टिप्स। आपको हर टॉपिक से रिलेटेड जब तक कुछ चंद पॉइंट्स फिंगर टिप्स पे नहीं होंगे, आप एग्जाम में सही परफॉर्म तो हमने करना नहीं है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बिल्कुल परफॉर्म नहीं कर सकोगे, राइट? यू हैव टू प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस देयर। अगर नहीं करोगे, ओनली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस वाले विल पास। जो नॉर्मल या एवरेज होते हैं, शायद उसमें से 1-2% तुक्के से निकल जाए, लेकिन मेजॉरिटी नंबर 59, 58, 59 पॉइंट समथिंग आते हैं, 58, 59। वो जो कहते हैं ना 2 नंबर से फेल, 1 नंबर से, आधे नंबर से, ये वो होते हैं जो अच्छे होते हैं, दे आर वेरी वेरी गुड, बट दे आर एवरेज। और लेकिन एग्जामिनर्स वांट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। क्यों एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी? क्योंकि कल को जब आप क्लिनिक पे बैठे होते हो या फिर आप एकदम से यू एनकाउंटर सच सिचुएशंस के आपकी जब तक वहां पे प्रेजेंस ऑफ माइंड और वहां पे वो जो एग्जाम की ग्रूमिंग है ना, एग्जाम इज ऑल्सो पार्ट ऑफ अ ट्रेनिंग एक्चुअली। वो एक आपकी ग्रूमिंग है उन सिचुएशंस को भी डील करने का, कि हाउ आपकी वो प्रेजेंस ऑफ माइंड कल को उस जो पूरा खानदान एक पेशेंट का आपके ऊपर प्रेशर डाल रहा है, और एक इमरजेंसी में आप खड़े हो, बट यू हैव टू रिमेन वेरी काम एंड वेरी कॉन्फिडेंट। वो किस तरह होगा, वो प्रेजेंस ऑफ माइंड कैसे होगा जब आपकी हर चीज आपको फिंगर टिप्स पे होगी, ताकि मैनेजमेंट भी गलत ना हो, बट पैनिक भी ना करो, बट थिंग्स शुड गो स्मूथ एज वेल। सो एग्जाम तो मैं कहती हूँ इज अ वेरी गुड ड्रिल फॉर डीलिंग विद सच सिचुएशंस। तो जो कंजेनिटल एनोमली है उसकी एक टिप, चाहे जो भी कंजेनिटल एनोमली दी हुई हो अल्ट्रासाउंड पे, आपने 4 चीजें उसकी ओवरऑल मैनेजमेंट में बोलनी भी जरूर है, आपने याद भी जरूर रखनी है। एक, कि वो कौन सी जेस्टेशनल एज पे है। नंबर 2, कि इज इट अ सिंगल एनोमली और मोर देन वन एनोमली। नंबर 3, have you offered or do you have a report of karyotyping of the baby, complete genetic study of the baby? Is it a syndrome or what? Number 4, what's the wish of parents? ठीक है, पेरेंट्स की विश के बगैर तो हम नहीं कंटिन्यू कर लेंगे, या मतलब इफ इट्स बेबी ऑफ हैविंग पुअर प्रोग्नोसिस, तो पेशेंट पेरेंट्स की विश के बगैर तो नहीं टर्मिनेशन हो जाएगी, या फिर कोई भी बेबी रिस्क को कंसिडर किए बगैर, जब तक आप ये 4 वर्ड्स नहीं यूज करोगे अपनी काउंसलिंग में। 5वां, जो आप अगर काउंसलिंग में बोलना चाहो या जब आप बाद में जाके बोलना चाहो, यू कैन नॉट टॉक टू द पेशेंट विदाउट आपकी बात कंप्लीट नहीं है जब तक आप जिक्र ना कर दो कि इस कंडीशन का रिकरेंस क्या है। सबसे पहले जो पेरेंट्स है ना, वो ये सुनना चाहते हैं कि इस बेबी में तो हो गया, अगले बेबी का बताएं, हमारी क्या हर प्रेगनेंसी ऐसी होगी? तो ये कुछ बातें हैं 4-5 जो आपने हर इनॉमलस बेबी की काउंसलिंग में बोलनी है। कि she's at 28, I will counsel her that she's at 28 weeks of gestation, which is a borderline gestation. She's not at a very early gestation. ये 20 weeks पे होती तो उसकी मैनेजमेंट और हो जाती. She's at 28 weeks. For good viability,
or a better viability of the baby, she is 2 months away at least, right? From having good viability, not like 4 months away. So I can see. Number two, is it a single anomaly or double or more than one anomaly? मरियम ने मिस किया, 2-3 चीजें मिस की इन्वेस्टिगेशंस में. जब मैंने कहा बी नेगेटिव है तो उसने हस्बैंड का ब्लड ग्रुप नहीं मांगा. हालांकि मैंने यही सोचा था कि हस्बैंड का भी नेगेटिव ही कर दूंगी ताकि बात आरएच की तरफ ना जाए, बट वो हस्बैंड का मांगा ही नहीं. सो उसके अलावा ये कि उसे सेकंड अल्ट्रासाउंड नहीं मांगा. चाहे अल्ट्रासाउंड एक बिल्कुल बहुत ही किसी बड़े सीनियर बंदे ने भी किया हो, इवन देन वी नीड टू गुड अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट्स बिफोर गोइंग अहेड विद अ प्रॉपर डिसीजन फॉर द प्रेगनेंसी हैविंग एनॉर्मलस बेबी. ठीक है, आप डिसाइड नहीं कर सकते जब तक 2 अच्छी अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट्स शो ना कर दें कि ये बेबी वाकई एनॉर्मलस है. सो number one, gestational age. Number two, if it's a single anomaly or having more than one anomalies. Number three, I will offer karyotyping or I will offer genetic studies of the baby to rule out that a baby is having some genetic disorder or it's just a single isolated anomaly. Number four, I will discuss with the parents. I would definitely like to syndrome. वो कहते हैं कि नहीं, we'll continue, etc. etc. तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है. रहेगी बात हाइड्रोकेफलस की. अच्छा देखो, मरियम वाज वेरी कंफ्यूज्ड. इस तरह से नहीं, आपका हिस्ट्री एग्जामिनेशन इन्वेस्टिगेशन तक यू वर गोइंग लाइक अ वेरी वेरी गुड स्टूडेंट. आपकी तैयारी मुकम्मल है वैसे माशाल्लाह. हाँ, मैनेजमेंट पे आपने 2-3 चीजों के पॉइंट्स याद रखो. एक, काउंसलिंग. देखो, जो एनॉर्मलस बेबी का अल्ट्रासाउंड आ गया ना, उसमें आप पास फेल हो सकते हो काउंसलिंग पे. इसलिए मैंने ये 4 पॉइंट्स आपको बोले बार बार. इसमें अगर आप रिकरेंस का भी जिक्र कर दो और कॉज की भी जिक्र कर दो कि ये कॉज हुई या फिर प्रोबेबली हमें कॉज नहीं मिली. जैसे फॉर एग्जाम्पल, इट इज वेरी वेरी रेयर. यस्टरडे आई एनकाउंटर्ड अ पेशेंट जिसका एनॉर्मलस बेबी था, टॉर्च स्क्रीनिंग में CMV IgM पॉजिटिव था. मतलब मैं मेरे लिए इट वाज अ वेरी वेरी रेयर केस के टॉर्च स्क्रीनिंग में CMV IgM पॉजिटिव आ गया एंड पेशेंट वाज देयर विद द रिपोर्ट ऑफ हाई ड्रॉप्स एंड हेड एनॉमलीज ऑफ द बेबी. और जब टॉर्च स्क्रीनिंग कराई तो इट वाज CMV पॉजिटिव. तो CM, इसलिए मैं कह रही हूँ टॉर्च स्क्रीनिंग अगर इस तरह का रिलेटेड कोई नॉर्मली आए तो आप फिर कंप्लीट बोलो और आपको कॉज मिल जाती है. तो फिर जेनेटिक स्टडीज और उसकी बात फिर एक तरफ हो जाती है. ठीक है ना, फिर आपकी वो चीज क्लियर हो जाती है. तो और फिर आप रिकरेंस की बात भी कर सकते हो कि अगर ये टॉर्च की वजह से CMV फॉर एग्जाम्पल की वजह से आ गया कुछ, तो ऑब्वियसली इट्स नॉट रिकरिंग. नेक्स्ट प्रेगनेंसी में ये नहीं होगा. ठीक है, और उसमें जाहिर है फिर आप नेक्स्ट प्रेगनेंसी पहले उसका रुबेला वगैरह आप करा चुके हो अगर IgG. तो एनॉमलस के अंदर मैं बता रही हूँ कि आपने ये 4 चीजें, उसके अलावा कॉज और साथ आपने रिकरेंस. काउंसलिंग तो एनॉमलस जहाँ टर्मिनेशन की बात हो रही है, जहाँ इसकी हो रही है, अगर आप काउंसलिंग पे 1 मिनट पूरा नहीं गुजारोगे, उस 1 मिनट में आपका मुकम्मल फैसला हो सकता है. इट इज सो वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, तो आपने ये 4 या 4 बातें इन पर्टिकुलर प्लस 2 बातें जरूर कर देनी है. उसके बाद एक और टिप छोटी सी मैनेजमेंट की. देर आर फ्यू एनॉमलीज. मैंने क्यों इसको हाइड्रोकेफलस बनाया और मैंने क्यों नहीं इसको एनकेफली बना दिया, या मैंने इसको क्यों मल्टीपल एनॉमलीज वाला नहीं बनाया. हाइड्रोकेफलस इज वन ऑफ दोज एनॉमलीज जो कि थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है रिगार्डिंग मैनेजमेंट. हाइड्रोकेफलस से रिलेटेड या इस तरह की क्यों, जो अगर थोड़ी बहुत, और जैसे हार्ट की कोई डिजीज होती है रिलेटेड या कुछ ऐसा, इन पर्टिकुलर हाइड्रोकेफलस ही मेनली एक ऐसी है वैसे एनॉमलीज में जो एग्जाम में भी आ जाती है. उसकी एक टिप कि मैनेज क्या करना है, क्योंकि मरियम ने पहले इसकी शायद कंटिन्यू किया, फिर उसने एकदम से रिस्क बताए, फिर टर्मिनेशन की बात करने लगी, फिर टर्म पे ले गई बेबी को. मतलब दैट स्टेटमेंट वाज शोड के ये खुद बहुत कंफ्यूज्ड है. और इमेजिन करो कि क्लिनिक पे पेशेंट बैठा हुआ है एक एनॉमली की रिपोर्ट लेके आपके सामने, और आप इस तरह की आई बहन मारना शुरू हो जाओ कि कभी टर्म तक लेके जा रही हो, फिर को नहीं 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 इसकी तो ये नॉर्मली है तो मैं MDT इन्वॉल्व करूंगी. नहीं तो वो, डू यू रियली थिंक कि वो शायद 1 मिनट से ज्यादा भी आपके क्लिनिक पे स्पेंड करेगा? नेवर. क्योंकि ये बहुत सीरियस बात है पेशेंट के लिए. इसकी टिप ये है कि अगर हाइड्रोकेफलस 20 वीक्स पे प्रेजेंट कर रहे हैं एंड इट इज अ नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव टाइप, ये बातें भी मरियम ने मिस की थी. 20 वीक्स पे वो प्रेजेंट कर रही है पेशेंट हाइड्रोकेफलस के साथ, तो डेफिनेटली टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, बिकॉज बाय द टाइम शी रीचेस 34 और 36 वीक्स
टर्म तक तो बेबी जाएगा ही नहीं ना, हाइड्रोकेफलस का आप टर्म तक कैसे लेके जाओगे विद दिस एनॉमली जिसमें इस तरह का मसला, वो तो सीपी वरना बढ़ता जाएगा, उसका ब्रेन टिश्यू कंप्रेस होता जाएगा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो 20 वीक्स पे तो वैसे भी विद हाइड्रोकेफलस शोज के आफ्टर ऑफ कोर्स आप ये चारों बातें बोलोगे कि जेस्टेशनल एज, पेरेंट्स की विशेस, मल्टीपल एनॉमलीज तो नहीं है, कैरियोटाइपिंग, बट 20 वीक्स पे शी हैज पुअर प्रोग्नोसिस। Number one, management will be termination. Number two will be according to parents, which we'll see. So उसके बाद अगर ये अब ये 28 weeks is a very confusing gestation. इसके अंदर you can offer continuation with monitoring of the head diameter or the ventricular diameter और वो सारा कुछ कंसिडर करते हुए आप इसको फिर भी कंटिन्यू कर सकते हो till 34 weeks. और if it keeps on increasing rapidly तो 30-31 weeks पे भी you can decide कि आपने क्या करना है. Similarly अगर ये obstructive type है तो obstructive type is treatable, especially immediately after, हमारे तो इधर immediately after delivery it has got very good prognosis. वो उसका इंट्राक्रेनियल जो भी कैथेटर वगैरह से उसकी ऑब्स्ट्रक्शन का वो कर लेते हैं, वो प्रोसीजर्स होते हैं क्रेनियोटमी वगैरह, वो जो भी वो करते हैं न्यूरो सर्जन, तो वो आप कर सकते हो। और सिमिलरली इन यूट्रो भी बुक्स में तो लिखा हुआ है, तो वो हो सकता है। तो चलो, तो आपने हाइड्रोकेफेलस देख लिया, फिर आपने ये रूल आउट नहीं किया कि वो ऑब्स्ट्रक्टिव है या वो नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव है, उसकी कॉज को देख के और फिर यू कैन ट्रीट अकॉर्डिंगली। सो दिस इज हाउ यू गो अबाउट इट। ठीक है, ठीक है मरियम। जी मैडम। और मैडम ऑब्स्ट्रक्शन नॉन ऑब्स्ट्रक्शन का वही जो इंट्राक्रेनियल ट्यूमर वगैरह पूछेंगे उससे पता चलेगा? हाँ, आप अल्ट्रासाउंड, आपने इन्वेस्टिगेशन में अल्ट्रासाउंड बहुत अच्छा बोला था, बिल्कुल उसी तरह बोला, उसी में पता चल जाएगा ऑब्स्ट्रक्टिव है कि नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव है। अब ये पूरी मैनेजमेंट बोलो मरियम। और इफ यू आर गोइंग फॉर एग्जाम्पल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, तो उसका तरीका भी बताओ। चलो फटाफट, 3-4 मिनट्स हैं बस आपके पास, बताओ, कोशिश करो, स्टार्टिंग फ्रॉम काउंसलिंग। Okay, I will break the bad news in very empathetic manner. I will repeat the ultrasound from expert sonologist and I will complete my missing investigation. I will offer her the option of karyotyping to rule out other genetic anomalies and I will discuss with the parents and I will tell her that as at 28 weeks she is having poor prognosis. So I will tell her the option of termination of pregnancy after the parent wish. So for this, I will assess her Bishop scoring and I will tell her the different method of मैडम आप आवाज आ रही है? आ रही है, बहुत अच्छी बात बोल रहा हूँ, प्लीज कंटिन्यू करें। So as after thorough counseling at 28 week, I will tell her the different method of termination. I will assess her Bishop scoring and then according to new FIGO classification, I will induce her with misoprostol. Madam मुझे exact dose नहीं याद, but उसके accordingly I will induce की कर लो, ठीक है। I will induce by keeping her misoprostol and then I will be very vigilant for PPH, and once termination has will be successfully completed, then I will tell her the risk of recurrence in next pregnancy and to take folic acid in her early pregnancy and early visit in next pregnancy. Good. 2-3 चीजें, बातें ये है कि अब आपका काफी बेहतर था, आपकी स्पीच अच्छी है वैसे, एंड यू पिक थिंग्स वेरी अर्ली, माशाल्लाह, यू आर गुड। आपने काउंसलिंग अच्छी की, उसको थोड़ा सा और इलाबोरेट कर, तो वो चीज है जो कि आपको बाकी कैंडिडेट से डिफरेंट कर रही है। यू आर कवरिंग वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स, हर चीज को आप कवर करके वो 4 बातें एक स्टेटमेंट में बोल रहे हो, तो आप इसको और इलाबोरेट कर सकते हो कि कैरियोटाइपिंग इस चीज के लिए, और उसके अलावा ये कि वही मल्टीपल एनोमलीज तो नहीं है ये वो। और वो फिर आपने कहा अच्छा चलो प्रेजेंट अल्ट्रासाउंड में इट्स अ ग्रॉस हाइड्रोकेफेलस एंड इट कैन नॉट बी कंटिन्यूड, सो I would like to counsel parents and would like to know their wish if they are willing for termination of pregnancy considering poor prognosis. ठीक है, उसके बाद जब आपने प्लान किया, then termination decide हो गई। For termination, you are now going to decide the mode of delivery. Mode of delivery depend कर रही है उसके presenting part पे भी, right? So वो सारी चीजें बोलो कि I would like to know her presenting part of the baby, which on examination is cephalic and an ultrasound also is cephalic. So then I would like to do which you did, Bishop scoring. और फिर बोलो ना कि Bishop score का क्या फायदा है? If Bishop score is favorable, then there is no need to ripen cervix with misoprostol. Then you can straight away start with the syntocinon because it's already ripe.
So if not, if bishop is poor, which it will be probably because she is primary gravida, then you would like to ripe up the cervix with misoprostol. If you have chosen misoprostol as your medicine for termination, uski dose bol do. I think third trimester में 25 microgram है, that you will use per vaginum. और उसको वो आप 6 hourly रखोगे और 2 doses at least and 3 भी at times, और फिर आप अकॉर्डिंगली उसके साथ बोलो कि मैं उसके साथ क्या क्या मॉनिटरिंग करूंगी. साथ साथ पेशेंट को एब्सोल्युटली यू हैव टू कीप हर पेन फ्री. उसकी वजह ये है कि ये सारी बातें बोलो कि शी इज ऑलरेडी हैविंग टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी विद अनोमलस बेबी. तो उसकी पेन रिलीफ के लिए बेस्ट जो कर सकते हैं, ऑब्वियसली एपिड्यूरल दे दो या जो भी आप कर सकते हो, वो सारा कुछ आप करोगे. यू डिस्कस विद द पेशेंट, और वंस द लेबर स्टार्ट्स आप उसको मॉनिटर किस तरह करोगे, एंड देन यू विल डिलीवर हर नॉर्मली. डिलीवरी के बाद 28 वीक्स पे देयर आर हाई चांसेस दैट मेम्ब्रेन्स आर लेफ्ट बिहाइंड. सो आफ्टर डिलीवरी ऑफ बेबी एंड प्लेसेंटा मेम्ब्रेन्स, आई वुड लाइक टू रिपीट हर अल्ट्रासाउंड इफ एनी RPCs आर लेफ्ट इनसाइड. एग्जाम में कहना कि वो एम्प्टी हो गई है तो MVA या DNC की जरूरत नहीं है करने की. सो तो ये सारी वो चीजें जो आप करते आ रहे हो डिपार्टमेंट में, इट इज अ मस्ट दैट यू शुड टॉक लाइक दिस, और दिस इज हाउ यू डू द टर्मिनेशन. और उसके बाद यस यू विल काउंसिल पेरेंट्स फॉर द नेक्स्ट प्रेगनेंसी. जस्ट डोंट से फॉलिक एसिड, ऑब्वियसली डबल डोज ऑफ फॉलिक एसिड दिस टाइम. ठीक है, पेशेंट हु हैड हाइड्रोकेफेलस प्रीवियसली और कोई भी और उसकी स्पाइनल कॉर्ड की एनोमली है या कुछ भी ऐसा है, तो आप उसको अगली प्रेगनेंसी में फॉलिक एसिड की ज्यादा डोज दोगे. ठीक है, इफ नॉट 400 माइक्रोग्राम और 600 माइक्रोग्राम, तो 1 ग्राम 600 मिलीग्राम आप उसको 1 ग्राम फॉलिक एसिड भी दे सकते हो, दोगे. सो आप यूं बोलोगे कि डबल डोज ऑफ फॉलिक एसिड और वो सारा कुछ. ठीक है मैम, अगर ये पेशेंट मैम 32 वीक्स पे आए और मैडम फिर मैम हम इसको कैसे वेरी मैनेज गुड. करेंगे? कितना अच्छा ये सवाल है. ये सवाल हो सकता है एग्जाम में, और ऐसा सिनेरियो भी आ सकता है. इफ अ पेशेंट इज देयर विद anomalous बेबी एट फॉर एग्जांपल 32 वीक्स और 30 वीक्स, राइट, और बेबी हैज गॉट पुअर prognosis, what will you do? Will you do termination because baby will be born alive? Viability है बेबी की, and baby has got poor prognosis. 32, 34 weeks, 30 weeks. मैडम मैडम उसका Sorry, बायपराइटल आवाज डायमीटर देखेंगे उसमें, नहीं. और बायपराइटल मैंने cortical कह दिया thickness. पुअर प्रोग्नोसिस है बेटा. मैंने आई हैव सेड दैट पेशेंट हैज गॉट पुअर प्रोग्नोसिस, एंड यू अगर यही पे भी 28 वीक्स पे नॉन वायबिलिटी स्टेज पे आता तो आप टर्मिनेशन कर रहे होते. बट नाउ द बेबी इज एट 32 वीक्स फॉर एग्जांपल, और 34 वीक्स, बट बेबी हैज गॉट पुअर प्रोग्नोसिस. फॉर एग्जांपल ये डाउन सिंड्रोम है. मैडम इसमें अगेन मैडम वही वाली बात है ना मैम, क्या पेशेंट समझ विशेस की. बात आपने ठीक किया, इसको एलाबोरेट करके बोलेंगे. देखो इसके अंदर अगर ऐसा सिनेरियो या एग्जामिनर आपको ऐसा सिनेरियो करते, ये वैसे उस तरह का मेरा ख्याल है सिनेरियो है कि वाइवा, जैसे मरियम का भी वाइवा हो गया और शी हैज डन माशाल्लाह एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस, और अब वो उसको बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी देने लगे मार्क्स, राइट, बिकॉज इट्स अ डिफिकल्ट सिचुएशन. अब इससे या फिर वहाँ खुदा ना खासा सिनेरियो ही ऐसा आ जाए, तो इस अगर ऐसा कुछ हो तो आपने एग्जामिनर को बोलना है कि दिस इज अ डिफिकल्ट सिचुएशन एंड अ डिफिकल्ट डिसीजन, बिकॉज इफ द बेबी इज born and termination of pregnancy is done at this stage, then number one baby will be anomalous, number two preterm वाला element will be added to the whole condition. यानी कि आप एक तो डाउन सिंड्रोम का बेबी डिलीवर कर रहे हो अलाइव, और ऊपर से वो प्रीटर्म भी होगा, यानी कि जब बच्चा अलाइव है और बेशक वो एनोमलस है तो उसे नर्सरी में रखना पड़ेगा. नो वन कैन कोई पेरेंट्स अलाउ नहीं करेंगे एथिकली. नो वन इन द हॉस्पिटल आल्सो इज गोइंग टू गिव द बेबी एनी सच इंजेक्शन, खुदा ना खास्ता कि वो उसकी लाइफ आफ्टर बर्थ, नो वन इज गोइंग टू कॉज टर्मिनेशन ऑफ लाइफ इन दैट सेंस. वो तो हो नहीं सकता. तो अब क्या होगा कि बेबी इज born at 32 or 34 weeks, baby is anomalous, plus the preterm thing is added to the baby, right? और preterm की वजह से baby is kept in the nursery, so the decision is very, very difficult, right? So I will sit with the patient and her husband and will discuss with them that if termination of pregnancy is done at this stage,
because now it is the late time to detect the anomaly, but the anomaly has been detected and baby has got poor prognosis. But if delivery is done at 34 weeks, then baby will, there are high chances that baby will be born alive, but then baby will be needing nursery for many, maybe, I don't know, kitne months. So the preterm element will be added to the baby, and it will be more hassle. So so I will give them options. Number one, to go for termination. Number two, to continue pregnancy till term, so that at least when the baby is born, the baby doesn't need the nursery. दोनों options will be given to the parents, and then they will decide. Pros and cons बताओगे. If the baby is born early at this stage, baby will be needing nursery, medical care, more medical care will be needed. Baby, there are high chances baby will be born alive. It will be difficult for the baby and parents both. So, but termination will be done, although the consent for do not resuscitate will be taken. But even then, baby may not need resuscitation, but will be needing nursery. However, if the baby is taken up till term, baby will be born with anomalies, will have life ahead. Again, maybe with difficulties for parents and for the baby, but at least the nursery part will not be there. So ये दोनों चीजें आप लेके कंसिडर करके कौन से करोगे. अस्सलाम वालेकुम मैम, एक क्वेरी है. हमारे पास एनाबुलस बेबी जिस भी वीक में आता है ना, मतलब तो हमें उनको काउंसलिंग और पेरेंट विश और टीओपी का ऑप्शन देना ही देना है क्या? सॉरी, आपका क्वेश्चन नहीं समझ आया मुझे. कि हमारे पास जैसे एनाबुलस बेबी जो किसी भी वीक में हो, भले फर्स्ट सेकंड थर्ड ट्राइमेस्टर में किसी भी वीक पे डायग्नोस हो, हमें काउंसलिंग पेशेंट विश और जो है टीओ टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी का ऑप्शन देना ही देना है. Not at all, not at all. फातिमा, इन सारी बातों में आप 2 पॉइंट्स मिस कर गए. एक पॉइंट ये कि is it an isolated anomaly or has got other anomalies in the body as well. Number 2, genetic studies. For example, it's a hydrocephalus it's a mild hydrocephalus, meaning it has got good prognosis considering isolated hydrocephalus. But this hydrocephalus is attached with other anomalies. Maybe hydrocephalus is with hydrops. Maybe hydrocephalus is with a heart anomaly. Maybe hydrocephalus is with duodenal atresia. If there are multiple anomalies, it means that the baby has not a good prognosis, but even then you need to do the genetic studies done. And for example, if there are 2 anomalies, for example, spina bifida and duodenal atresia, and both are treatable and both have got good prognosis, then yes, again, you will have to rule out, because it's more than one anomalies. You have to rule out if the baby has got some syndrome or not and decide accordingly. अगर आइसोलेटेड अनोमली है तो टर्मिनेशन. जेनेटिक स्प्रेडिंग का बोलना है, अगर मतलब जो है ना वो इसमें जेनेटिक ऐड करना स्टडीज है. अब तो पाकिस्तान में इन अ सेंस के यस फैसिलिटीज अवेलेबल. मदर का सैंपल लेके बाहर भेजा जाता है एंड रिपोर्ट कम्स इन 1 or 2 weeks. ये सारा कुछ आप बताओगे, बट ये है कि आपने विदाउट जेनेटिक स्टडी डिसाइड करने का नहीं बोल देना. आइदर पेरेंट्स गेट इट डन और नॉट. जी मरियम. क्वेश्चन है, अगर पेशेंट हमसे एग्जामिनर ये सवाल करे कि नेक्स्ट प्रेगनेंसी आप कैसे करेंगे, तो फिर हम लोग रेडी प्रेगनेंसी और नेक्स्ट बेबी का ऑप्शन देंगे देखो, क्या? इफ द पेशेंट हैज कम विद दिस with this problem, तो ये सवाल के बगैर, सॉरी म्यूट. अगर पेशेंट आई है विद एनोमलस बेबी का अल्ट्रासाउंड और वो, मैं आप सबको जरा म्यूट कर रही हूँ, फिर जिससे बात करने वाली म्यूट कर लेगा. तो ये तो वाइवा कंप्लीट ही नहीं होगा जब तक आप उसमें अगली प्रेगनेंसी की काउंसलिंग नहीं करोगे. वो तो एग्जामिनर का क्वेश्चन मस्ट है उसमें कि आपकी नेक्स्ट प्रेगनेंसी में हर जो मैं आपको बताती हूँ वाइवा है ऑप्स का, अगर उसके अंदर डायबिटीज है, उसके अंदर एनोमलस बेबी है, उसके अंदर कोई भी कॉम्प्लिकेशन इस दफा है प्रेगनेंसी की, तो उसमें अगली प्रेगनेंसी की बात जरूर होगी. जी एक एक करके. सोमिया आप पूछो. अस्सलाम वालेकुम मैडम, अगर यही केस 28 वीक्स पे माइल्ड हाइड्रोकेफेलस होता लेकिन आइसोलेटेड होती जी, तो मैडम हाँ? इसको हम फिर करते हैं सीरियल स्कैन मतलब स्कैन्स के साथ लेके चलते फॉर वेंट्रिकुलर डायमीटर, सारे scans, even growth भी. Such babies may get IUGR, such babies may get oligo or Dremnios or poly or etc. etc.
तो अगर आप कर रहे हो तो 2 वीकली स्कैन के साथ आप उसे मॉनिटर करोगे। तो मैडम कितने उस पर 38 तक लेके जाते हैं या पूरे टर्म तक, अगर ये इट माइल्ड भी डिपेंड्स, रहती है? इट्स अ गुड क्वेश्चन बट इट देन डिपेंड्स। उसका डिपेंड वो ये करता है कि आपका किस तरीके से हो रहा है वो मैनेज। मतलब अल्ट्रासाउंड के ऊपर इफ द हाइड्रोकैफलस इज स्टैटिक तो फिर तो ठीक है, फिर तो आप उसको उसी तरह करोगे, फिर यू विल कंटिन्यू द प्रेगनेंसी। बट इफ इट इज इंक्रीजिंग तो आप उसको देखोगे फिर 34 तक ले जाके, ताकि वायबिलिटी बेहतर रहे। फिर काउंसल करके अबाउट नर्सरी डेक्सा देके देन यू विल डिसाइड। देन देयर विल बी डिफिकल्ट डिसीजन कि आपने सिजेरियन करना है या नॉर्मल डिलीवरी करनी है। I would suggest number one will be the cesarean section because 34 weeks पे आपके failure of induction का rate ज्यादा है, then the baby is already anomalous। बेबी का जो है how much इसकी उसकी कैपेसिटी क्या है to bear normal labor pains, उसमें डिस्ट्रेस हो जाएगा, तो डिस्ट्रेस में कॉम्प्रोमाइज anomalous बेबी का प्रोग्नोसिस ज्यादा बुरा होगा। सेकेंडली बेबी का हेड डायमीटर भी। तो हाइड्रोकेफलस को अगर आप 34 वीक्स तक लेके गए हो तो नंबर वन ऑप्शन विल बी सिजेरियन सेक्शन इफ यू वांट अ लाइव बेबी और आप उसकी टर्मिनेशन नहीं कर रहे तो, और ऑफ कोर्स बेबी की प्रेजेंटेशन ठीक है। बट देन अगेन एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन उसका है नहीं, बट प्रेफरेंस विल बी द सिजेरियन सेक्शन। ठीक है, थैंक यू मैडम। वेलकम। संबल आप पूछ लो आपका। जी अस्सलाम वालेकुम मैम। मैम अगर पेशेंट आए आफ्टर 28 वीक्स विद एनेनकेफेली के साथ आफ्टर 28 वीक्स आए तो हम उसको टर्मिनेशन का कहेंगे कि उसको एनेनकेफेली आगे तो अल्लाह तकलीफ ना होगी टर्म करे, तक? अगर 38 वीक्स पे भी आए तो उसे टर्मिनेशन का ही नाम देंगे। देर आर फ्यू कंडीशंस जिसमें 0% सर्वाइवल है, मतलब बहुत ही हाई ड्रॉप्स, ग्रॉस हाई ड्रॉप्स विद मल्टीपल एनॉमलीज, उसमें तो जहां जब भी आए इट विल बी टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है जी। मैम जी अगर सलमा। हाँ, कपल कहे कि नहीं हमने नहीं करनी, क्यों? मैम अगर वो counsel them that it's not a good decision and then carefully का तो जीरो, फिर भी वो कहें कि नहीं तो फिर obviously we cannot। ठीक है जी सलमा। जी क्वेश्चन पूछे सलमा, अपना हैंड रेज किया हुआ है। मरियम आप पूछ लो। जी सलमा। मैडम मैंने ये पूछना कि हाइड्रोकैफ वाला अगर 9.8 बीपीडी के साथ ये ब्रीच आता है ना और प्री टर्म होता है तो फिर इसमें तो सी सेक्शन ही इंडिकेटेड होता है ना ब्रीच में, अगर जब भी ये आएगा हमारे पास। हाँ, आई वुड डू सिजेरियन सेक्शन क्योंकि हेड फंस जाएगा। हाँ, अगर आपने टर्मिनेशन करनी है और हाइड्रोकेफिलस है और ब्रीच है तो फिर आप केफेलोसिंथेसिस कर सकते हो। इवन वो डिलीवरी जब ब्रीच डिलीवर हो रहा है और बॉडी एक्सट्रैक्ट आउट हो गई है तब भी हाइड्रोकेफिलस को आप केफेलोसिंथेसिस करते हो और फिर वो हेड कंप्रेस हो जाता है और फिर वो डिलीवर हो जाता है। मैम अगर कोई पेशेंट प्रीवियस 1 या प्रीवियस 2 हो फिर अगर हाइड्रोकैफ के साथ आ जाए? नहीं, फिर तो इतना आपने ड्रास्टिक नहीं होना। ऑब्वियसली प्रीवियस 1 है विद हाइड्रोकेफिलस है तो डेफिनेटली फिर यू विल, फिर वी बैक के लिए टर्मिनेशन तो ऑब्वियसली फिर यू फर्स्ट ऑप्शन विल बी सिजेरियन सेक्शन। लेकिन उसके अंदर भी ये हो सकता है कि आप पेन से पहले उसको केफेलोसिंथेसिस करके हेड कंप्रेस कर दो एंड देन यू कैन पुट इन द फोलीज कैथेटर और उसको फिर डायलेट कराओ एंड देन उसको फिर अकॉर्डिंगली पेन स्टार्ट हो तो वो चीज ऑफर आप कर सकते हो। बट प्रीवियस 1 विद ब्रीच टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी में नंबर 1 ऑप्शन विल बी सिजेरियन सेक्शन, नंबर 2 विल बी नॉर्मल डिलीवरी, जिस तरह मैंने आपको बताया। जी शानदाना। मैम ये पूछना था कि मतलब कितना लिमिट हम बीपीडी का रखते हैं फॉर नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी? यार ऐसा आई कोई डोंट नो, लिमिट? ये क्राइटेरिया आपको बहुत हार्ड एंड फास्ट, मुझे कोई गाइडलाइन नहीं इसकी मिली। अगर आप लोगों को पता हो कि कोई लोग कहते हैं कॉर्टिकल थिकनेस की कुछ है, कोई हाई रिस्क में लिखी हुई है 1-2 वैल्यूज वो देख लो। बट ओवरऑल इट्स अ होल सिनेरियो वेदर उसका यस डायमीटर एज अ होल इज इम्पोर्टेंट वेंट्रिकुलर, देन इट्स एन ऑब्स्ट्रक्टिव टाइप और नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव टाइप, इट्स एन आइसोलेटेड एनॉमली और मल्टीपल एनॉमलीज, तो वो मैटर करता है। अगर किसी के पास कोई मेजरमेंट्स हैं तो वो प्लीज बता दें क्लास में या ग्रुप में शेयर कर दो। जी नाबा, मरियम ने भी हैंड रेस अस्सलाम वालेकुम मैम। आपने अभी कहा है जो माइल्ड वाले के बारे में आप बता रही थी कि हम प्रेफर करते हैं सिजेरियन, तो ये भी तो डिस्कस करना है क्योंकि कल को हम उस पे एक ठीक है माइल्ड हाइड्रोकेफ भी और उसको हम सिजेरियन का ऑप्शन दे रहे, तो इज इट गुड ऑप्शन? सॉरी क्या क्वेश्चन पूछा सर?
मैम आपने कहा कि जब माइल्ड हाइड्रोकैफ का आपने कहा है ना कि इसमें अगर प्रेफरेबल हम सिजेरियन करते हैं क्योंकि 30 to 34 वीक से बेबी को हम एक एनॉमली से उसको स्ट्रेस दे रहे हैं, ठीक लेकिन हम है। उधर एक स्कार भी तो दे रहे हैं ना, और बेबी के प्रोग्नोसिस का भी फिर भी हम कुछ नहीं कह सकते, माइल्ड है लेकिन फिर भी नहीं देखो, जब हमने डिसाइड कर लिया कि बच्चा लाइव आना है जी तो फिर ना तो वो कॉम्प्रोमाइज्ड बच्चा निकाल सकते हैं हम। जी When you मैम have decided that you are not doing termination of pregnancy, you instead want an alive baby because it has got better prognosis. तो उसको हमने उसी तरह डील करना है जैसे कि एक बिल्कुल नॉर्मल बेबी है। ठीक है यानी मैम। कि उसको खामखा का बहुत लंबा ट्रायल उस तरह नहीं हम दे सकते। फेल्ड इंडक्शन तो चलो का होगा, लेकिन अगेन उसमें फिर हमने बहुत एंथुजियास्टिकली नहीं, एक्सेप्ट कि देयर इज गुड बिशप एंड यू थिंक डायमीटर इज नॉट दैट बिग, पेशेंट आई 3-4 सेंटीमीटर्स पे है, बट उसमें भी कंटिन्यूस मॉनिटर लगा के इफ बेबी इज हाइड्रोकेफलस, वो डेफिनेटली एक ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज बच्चा है। जब लेबर पेन्स होंगी तो लेबर का भी एक स्ट्रेस होता है जो कि नॉर्मल बच्चा सह सकता है। नॉर्मलस बेबी या डिक्रीज लाइकर, ज्यादा लाइकर वाले बच्चे में स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग क्यों कहते हैं, कंटिन्यूस इलेक्ट्रॉनिक फीटल हार्ट रेट मॉनिटरिंग या इंटरमिटेंट हार्ट रेट मॉनिटरिंग, यू नो। इंटरमिटेंट इज फॉर एब्सोल्युटली नॉर्मल बेबी। जो आपका है कॉम्प्रोमाइज, ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज बेबी, उसमें कंटिन्यूस इलेक्ट्रॉनिक फीटल हार्ट रेट मॉनिटरिंग का नाम दिया गया। हर एक में कंटिन्यूस इलेक्ट्रॉनिक फीटल जी हार्ट रेट मैम। मॉनिटरिंग नहीं है। So, if a baby is already anomalous, there are high chances of failed induction. There are high chances of fetal distress. You don't want के बहुत chaos में बच्चा पैदा हो, यानी इमरजेंसी सिजेरियन कर रहे हैं, बेबी के हार्ट बीट 80s में 100 से नीचे गए में और आप रश कर रहे हो और सिजेरियन में, और एक बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज्ड हाइड्रोकेफलस आप पीड्स वाले को पकड़ा रहे हो। सो दिस इज अ बिग फेलियर, क्योंकि अगर आपको वो बच्चा लाइव करना है, पेरेंट्स को आपने बताया हुआ कि इट्स अ गुड प्रोग्नोसिस एंड यू हैव कंटिन्यूड प्रेगनेंसी बिकॉज ऑफ you should get an alive baby, then you have to deal with this baby as if it's a normal baby. उसको उतनी ही वैल्यू देके जानी है और एक अनकॉम्प्रोमाइज्ड हेल्दी बच्चा पीड्स वालों को देना है ताकि उससे आगे उसकी बेस्ट प्रोग्नोसिस अचीव हो सके। ठीक है, जी मैम, थैंक यू। वेलकम जी मरियम। मैडम अगर यही बेबी 28 वीक पे हमने डिलीवर कर लिया है तो एंड बेबी इज अलाइव, तो इसकी रिससिटेशन और एनआईसीयू सेंड करने का किस तरह होगा? 28 वीक्स पे तो फिर वी आर डूइंग टर्मिनेशन। 28 वीक्स में देयर इज नो एब्सोल्युटली नॉट अ गुड prognosis. It's less than 50% chance for a normal baby. और ये तो अब anomalous बच्चा है। तो why if we are doing it at 28 weeks and baby is born alive, 28 weeks का मतलब ये कि we are doing termination of pregnancy. So if we are doing termination of pregnancy and baby is born alive and it's, so definitely we'll hand over the baby to the pediatrician. Pediatrician ने पहले ही consent ली हुई होगी, do not resuscitate की, but till the time baby is alive, तो definitely we'll discuss with the parents कि whether they want to keep baby in the nursery or they want to take baby home. Majority what I have seen is that they keep the baby in the nursery because it's very very difficult कि आप अपना बच्चा इस तकलीफ में देखो और फिर you don't know how to handle the baby. उसको फीड नहीं करा सक रहे, उसको कुछ नहीं, नर्सरी में ये कि एटलीस्ट उसकी फीडिंग जारी होती है, वो सारा कुछ। तो दिस इज अ डिफिकल्ट सिचुएशन जी। और कोई क्वेश्चन? मैडम अब तो जो न्यूरो सर्जन के पास हम कंसल्टेशन लेकर जाते हैं ना, तो वो तो पहले ही बता देते हैं कि इसकी सर्जरी पॉसिबल है, हम शंटिंग कर सकते हैं। हर दफा ही बिल्कुल बता देनी चाहिए उनको। तो मतलब अब ज्यादातर मतलब ऐसे पेशेंट, ऐसे बेबीज को फिर तो हमने नॉर्मल बेबीज की तरह ही लेके चलना होता है, लेबर में भी और इन चीजों में, क्योंकि इसका तो पोस्ट ऑप सर्जरी हो कुछ भी सकती है, आइसोलेटेड में तो सर्वाइवल अच्छा है। सॉरी, क्योंकि मैडम नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव का तो सर्वाइवल बेटर है विद सर्जरी। ऑब्स्ट्रक्टिव का बेहतर है ना? हाँ सॉरी, ऑब्स्ट्रक्टिव का, जी मैडम ऑब्स्ट्रक्टिव का तो उसको तो फिर हम नॉर्मल बेबी की तरह लेके जाएंगे। वो डिपेंड करता है, वही बात के कौन सा वाला। जी नाबा, जी क्वेश्चन करना था नाबा ने कुछ। अच्छा ठीक है, सो इन शॉर्ट मरियम यू वर गुड। थोड़ा सा आपको मैं बता दूं कि करना क्या है। जब भी आप ऑप्स का केस बोलो, सबसे पहले काउंसलिंग, उसके बाद इन्वॉल्व मल्टी डिसिप्लिनरी टीम,
उसके अलावा कि हाउ आर यू गोइंग टू मैनेज द पेशेंट। मैनेजमेंट का मतलब ये है कि either you are going to continue the pregnancy or you are doing termination. If you are continuing the pregnancy तो फिर maternal और fetal monitoring क्या करोगे, और till what gestation you will take the pregnancy to. नंबर 2 ये कि जब वो gestation पे पहुंच गए हैं तो what will be your mode and time of delivery. तो ये इन शॉर्ट मैंने आपको मोटी मोटी 5 बातें बोली हैं, 5-6। प्लीज इनमें से कोई पॉइंट मिस नहीं करना। इसी सीक्वेंस में काउंसलिंग की मैंने आपको बातें बता दी 4-5, वो आपने जरूर करनी है। उसके बाद एमटीटी में आपको पता होना चाहिए कि इस केस में एमटीटी में आपने किस किस को इन्वॉल्व करना है। आपने पीडियाट्रिशियन को, न्यूरोसर्जन को इन स्पेसिफिक इन्वॉल्व करना है, न्यूनेटोलॉजिस्ट को। उसके अलावा आप खुद एज ऑब्स्टेट्रिशियन इन्वॉल्व हो, और इफ यू थिंक यू नीड एन एनेस्थेटिस्ट और पेन रिलीफ पर्सन तो वो अकॉर्डिंगली। उसके बाद मैनेजमेंट के अंदर इफ यू आर कंटिन्यूइंग द प्रेगनेंसी फॉर एग्जांपल, तो हाउ आर यू गोइंग टू कंटिन्यू, उसमें मैटरनल मॉनिटरिंग के पॉइंट्स और फीटल मॉनिटरिंग के, जिसके अंदर सारे मैटरनल रिस्क फैक्टर्स को लेके चलोगे, और फीटल के अंदर क्या आप उसके 2 वीकली ग्रोथ स्कैन करा के क्या क्या उसके साथ साथ देख रहे हो हेड का। इवन एट टाइम्स यू नीड टू गेट द vascular supply of जिसे कहते हैं ब्लड वेसल्स, वेस्कुलर सप्लाई ऑफ हेड एज वेल। आप उसका MRI भी करा सकते हो टू नो एग्जैक्टली कि उसके हेड में बेबी के क्या एनॉमलीज फर्दर और वो सारा कुछ। उसके बाद ये कि इफ यू आर प्लानिंग डिलीवरी, till what gestation you are going to take the baby to, and then what will be the mode and time of delivery. Again उसमें आप point start करोगे from the history examination, accordingly you will decide जब deliver करना है किस चीज से deliver करना है, delivery के दौरान क्या monitoring होगी, किस तरह से deliver करना है, और पीडियाट्रिशियन, और फिर जब डिस्चार्ज के वक्त उसको क्या क्या काउंसल करना है। सो दीज आर इन शॉर्ट सारा एक आपका मैनेजमेंट मैप है, जो माइंड मैप जिसको कहते हैं। आप इसको माइंड मैप बनाओ और उसके हर सिनेरियो, हर केस, हर टॉपिक का एक माइंड मैप बना के अपने एग्जाम में जाना है। ओनली देन यू आर एबल टू कवर ऑल द एस्पेक्ट्स। ठीक है, कोई क्वेश्चन या कोई और बात या कोई और क्वेश्चन वैसे पूछना है जी। ये आपने जो 20 वीक्स का, अगर फॉर एग्जांपल 20 वीक्स पे हाइड्रोकैफ आके सिंगल वही हाइड्रोकैफ हमें मिले, बाकी एनॉमलीज नहीं मिली, तो उसको हम ले जा। गुड क्वेश्चन। अगर 20 वीक्स पे हाइड्रोकेफलस है, बेशक वो माइल्ड हाइड्रोकेफलस भी है, you have to counsel patient that this is going to increase. ये आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगा, इसका कोई इलाज नहीं है। और ये जाकर और फॉर एग्जाम्पल यू कैन इवन ऑफर टर्मिनेशन एट दैट पॉइंट। एट 20 वीक्स यू कैन ऑफर टर्मिनेशन। अगर वो कहती है कि नहीं आई वुड लाइक टू सी के बढ़ता है या नहीं बढ़ता, तो 22 और 24 वीक्स पे स्कैन कराओ, बट 24 से आगे इसको लेके जाने की जरूरत है। जी मैम, ठीक, थैंक यू। अर्ली डिटेक्शन ऑफ एनॉमली मीन्स इट्स गोइंग टू वर्सन। जैसे ओलिगो मिल जाता है हमें 20 वीक्स पे, 18 वीक्स पे 2 या 3 AFI मिल जाता है। नंबर 1 टर्मिनेशन, आप उससे बता दो कि ये 2 से 3 AFI बढ़ेगा नहीं, मजीद कम हो सकता है। अगर ये मजीद कम भी ना हो, इफ इट स्टेज एट दिस लेवल इवन, और बेबी फॉर एग्जाम्पल ग्रो भी कर जाता है, तो बेबी इज गोइंग टू बी नॉर्मलस, क्योंकि उसे जगह ही नहीं मिल रही, उसके हाथ पांव सारे टेढ़े ग्रो होंगे। ठीक है, ग्रोथ नहीं। नंबर 2 ये कि विद 2-3 लाइकर at 18 weeks there are high chances that baby will end up as an IUD. तो जितना अर्ली डिसाइड कर लिया जाए उतना बेहतर है। However, there are still very less chances, maybe 1 to 2%, that maybe baby will stay alive, और पेशेंट कहे कि नहीं I would like to continue, then we'll continue. So 18 से 20 weeks में कुछ गड़बड़ मिल रही है, think a lot before you continue the pregnancy. और मैम ओलिगो में भी अगर सेम केस हो लाइक एट 30 और 32 वीक्स विद माइल्ड टू सीवियर ओलिगो, क्विकली। यस मैम। ओलिगो भी मैं आपको जल्दी से कवर करा देती हूँ। ओलिगो या पॉली, देखो जो भी आपकी आती है ना ऐसी फाइंडिंग जो कि आपकी फंडल हाइट को रिलायबल नहीं करती। रिमेंबर उसके अंदर मैं आपको शुरू से एक्चुअली बता रही हूँ थोड़ा सा हिस्ट्री एग्जामिनेशन से, जहां पे फंडल हाइट इज नो मोर रिलायबल और इट्स नॉट रिलेटिंग विद द डेट ऑफ प्रेगनेंसी, एक्सक्यूज मी, तो यू हैव टू गेट द डॉपलर डन। ऑप्स के केस में मैं ज्यादा चीजें आज इसलिए कवर क्विकली छोटा टच कर रही हूँ क्योंकि परसों 1-2 दिनों में MCPS का भी वाइव है। ऑप्स के केस में बहुत सेंसिटिव बात है, व्हेन आर यू आस्किंग फॉर डॉपलर। या तो आपने डॉपलर एक्स्ट्रा मांग लिया तो बहुत ही बुरी बात है, अगर आप मिस कर गए हो तो भी वो उतनी बुरी बात। डॉपलर की एक टिप है याद रखने की कि जहां पे आपकी फंडल हाइट आपकी
डेट्स को कंफर्म नहीं कर सकती, यू नीड डॉपलर, जिसके अंदर अनश्योर ऑफ डेट्स भी है, जिसके अंदर ओलिगो भी है, जिसके अंदर IUGR भी है, जिसके अंदर पॉलीहाइड्रोएमनियोस भी है, जिसके अंदर ट्विंस भी है, जिसके अंदर प्रेगनेंसी विद फाइब्रॉइड भी है। ऑलराइट, सो जहां आपने रूल आउट, आपकी फंडल हाइट की डिस्क्रिपेंसी आ गई, वहां पे डॉपलर आपने कराना है। अच्छा, अब ओलिगो है फॉर एग्जांपल, और उसके अंदर अब द रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर ऑल राइट, बट देयर इज ओलिगोहाइड्रोएमनियोस, इडियोपैथिक है, राइट, यू डोंट नो द कॉज, कोई कॉज भी नहीं पता, एंड इट्स ओलिगो, हाउ यू, बट बेबी इज अलाइव, ऑब्वियसली वायबिलिटी 28 वीक्स पे है, और इवन देखो अगर 25 पे भी है या 28 पे भी है, उस पे आपका फर्स्ट टाइम ओलिगो डिस्कवर हुआ है, नॉट एब्सेंट लाइकर, बट यस 5 है फॉर एग्जांपल, 4 या 5 है या 6 है, तो ऑब्वियसली गोइंग टू कंटिन्यू। आप उसका वीकली अल्ट्रासाउंड करा सकते हो, which will tell you ओलिगो का स्टेटस, एंड देन लेटर ऑन आगे जाके आप उसका ट्वाइस अ वीक बायोफिजिकल प्रोफाइल भी कराओगे, ऑब्वियसली टाइमली उसको डेक्सा कवर दोगे, एंड देन यू विल कंटिन्यू। अगर ओवरलैपिंग IUGR है तो यू विल बी मोर विजिलेंट, और नेक्स्ट प्रेगनेंसी में यू कैन नॉट फॉरगेट गिविंग हर लोप्रीन, और if you really think that there is an element of APLS also added with it, तो फिर आप उसको even Clexane भी ऐड करा सकते हो, या विद लोप्रीन अगर उसका IUGR या ओलिगो पिछली प्रेगनेंसी में हुआ है तो फिर आप उसको Clexane स्टार्ट करा सकते हो, वरना फर्स्ट से ही डबल डोज लोप्रीन स्टार्ट करा सकते हो। ठीक है, जी, आई होप मैंने क्विकली थोड़ा सा बता दिया। मैम और मैम कुछ? पॉली का बता देंगी कि पॉली पॉली में हम किस जी Poly is also it's not a very simple case, frankly. पॉली का जो पेशेंट होता है ना, इफ शी इज नॉट डायबिटिक, देखो अगर तो कॉज मिल रही है ना पॉली की, फिर आसान है, बिकॉज आप उसकी कॉज ठीक कर दोगे, वो पॉली एक जगह पे रुक जाएगा, वो एकदम से पॉली नहीं बनता जाएगा। इफ शी इज डायबिटिक एंड यू हैव कंट्रोल डायबिटीज, तो वो उस तरीके से नहीं होगा। तो इफ इफ देयर इज नो डायबिटीज, इवन फॉर एग्जाम्पल शी इज डायबिटिक ऑल्सो, पॉलीहाइड्रोएमनियोस डेवलप हो गया, ऑब्वियसली फंडल हाइट नहीं कोरिलेट करी, वाई डॉपलर, बिकॉज पॉली अगर फॉर एग्जाम्पल डायबिटीज की वजह से या किसी भी और वजह से, इडियोपैथिक भी है, देयर इट मे ऑल्सो कॉज IUGR, क्योंकि इवन पॉली के अंदर भी माइक्रोवेस्कुलर चेंजेस भी आ सकती है। क्रॉनिक डायबिटिक है और माइक्रोवेस्कुलर उसके प्लेसेंटा में चेंजेस आ सकती है, पॉली भी हो सकता है, साथ में IUGR भी हो सकता है, तो आपने डॉपलर कराना है, राइट। अगर कोई आपसे पॉली में डॉपलर की वजह पूछे तो आप ये कहोगे कि फंडल हाइट को रिलेट नहीं कर रही, मुझे नहीं पता चल रहा कि इसकी बेबी की ग्रोथ कैसी चल रही है, सो आई नीड डॉपलर। नंबर 2, डॉपलर भी ये नहीं कि 2 वीकली है, ऐसे एक आप 28 वीक्स पे कराते हो, एक आप 32 वीक्स पे कराते हो, अगर ये दो डॉपलर ठीक है तो फिर ठीक है, फिर आप कंटिन्यू करते हो, फिर नहीं परेशान, फिर ये नहीं कि आप टर्म तक डॉपलर फिर उसमें टर्म तक कराते जाएंगे जिसमें IUGR आ जाए 28 या 32 वीक्स पे, अदरवाइज बेस लाइन डॉपलर होता है 28 और 32 वीक्स पे। और जो इंडिकेशन मैंने आपको 4-5 बताई डॉपलर की, उसमें क्रॉनिक हाइपरटेंशन और क्रॉनिक डायबिटीज भी एडेड है क्योंकि गाइडलाइन में। ओके, सो पॉली के अंदर आपने ग्रोथ के लिए वो कराना है, ऐसा डॉपलर आप कराओगे, माइक्रोवेस्कुलर उसके देखने के लिए एस्टिमेशन भी ज्यादा हो सकता है। उसके बाद पॉली में 2-3 चीजें, अगर मैसिव पॉली है, शी सिम्टोमेटिक, उन्होंने मेडिकल ट्रीटमेंट भी बताई दी है इंडोमेथासिन की, अदरवाइज वो डिपेंड करता है कि आपने किस स्टेज पे देना है, वो ऑब्वियसली देयर आर वीक्स जिसमें एनोमलीज भी हो सकती हैं। अच्छा, उसके अलावा ये कि उसके बाद अगर इट इज मैसिव एंड शी इज नॉट सिम्टोमेटिक, तो आप उसको एमनियोसेंटेसिस के तरीके से भी उसका जो एमनियो रिडक्शन होती है वो भी करोगे, बिकॉज इफ शी इज सिम्टोमेटिक। बट अगेन पॉली को यू हैव टू कंटिन्यू टिल एटलीस्ट 37 वीक्स, और फिर देन यू कैन डिसाइड अकॉर्डिंगली। मैम ये पूछे इंडोमेथासिन, तो हमें अगर फॉर एग्जांपल कॉज पता चल गई, फिर उसमें तो कोई रोल नहीं है, अगर इडियोपैथिक है तब भी रोल होगा। ऑब्वियसली देखो, अगर पॉलीहाइड्रोएमनियोस एंड शी इज डायबिटिक विद एनी कॉम्प्लिकेशन, फॉर एग्जांपल मैक्रोसोमिया या पॉलीहाइड्रोएमनियोस, उसके अंदर इतना स्ट्रिक्ट डायबिटीज कंट्रोल होता है कि अगर आम हालात में 1 आवर आफ्टर मील हम 140 से कम रखते हैं, तो इन पेशेंट्स में जिसमें डायबिटीज विद कॉम्प्लिकेशन है जैसे कि मैक्रोसोमिया और पॉलीहाइड्रोएमनियोस, इन पेशेंट्स के अंदर फिर 110 से कम, 120 इज द लिमिट। फिर आपकी कोशिश होती है 1 आवर आफ्टर मील इट शुड बी लेस देन 120, यानी कि अगर एक पेशेंट पॉली विद डायबिटीज के साथ 130 शुगर के साथ आ रही है, यू कैन स्टार्ट ग्लूकोफेज, ताकि उसका एटलीस्ट हर लेवल 120 से कम रहे 1 आवर आफ्टर मील। शुड नॉट गेट हाइपोग्लाइसीमिक,
बट रैंडम शुड बी लेस देन 1 आवर, शुड बी लेस देन 120, ताकि आपने उसके पॉली को भी तो ट्रीट करना है, सिर्फ डायबिटीज को नहीं कंट्रोल करना। सिमिलरली आप, और सवाल ही पैदा नहीं होता कि अब उसकी एक भी वैल्यू 140 से ज्यादा है विद पॉली, एंड वंस यू नो शी इज डायबिटिक और फिर भी उसकी 140 से ज्यादा आई है, तो इससे बड़ा क्या फेलियर है? आइदर यू नीड टू एडमिट द पेशेंट और व्हाट। आपने उसकी शुगर को स्ट्रिक्टली कंट्रोल करना है, तो वो पॉली ठीक हो जाती है, वो पॉली का AFI ठीक हो जाता है, सिमिलरली बाकी चीजें ठीक हो जाती हैं। ठीक है मैम, और मैम क्या ये ऐसा है कि इंडोमेथासिन जो है हम सिर्फ इडियोपैथिक में देते हैं, बाकी में जो है तो नहीं ऑब्वियसली देते? पॉली विद डायबिटीज के अंदर तो इंडोमेथासिन की जरूरत नहीं है ना। इंडोमेथासिन इज नॉट वेरी फ्रीक्वेंटली यूज्ड ड्रग, आप सबको पता है कौन यूज करता है वार्ड्स में, इट्स वेरी वेरी रेयर, बट यू शुड नो एटलीस्ट। जी सौम्या। मैडम जैसे कि आपने कहा माइल्ड जो ओलिगो है, अगर इडियोपैथिक है, कोई हमें इडियोपैथिक, तो मैडम जैसे आपने कहा कि अल्ट्रासाउंड कराएंगे, तो इसको हम कितनी उससे गेस्टेशनल एज पे, वो भी 37 या डिसाइड किया अकॉर्डिंग टू सिचुएशन? क्या चीज पॉली? मैडम ओलिगो। ओलिगो को भी देखो, बात यह है कि वैसे तो 38 वीक्स लिखा हुआ है, but you have to be very very vigilant. If she's oligo, she's definitely having placental insufficiency, if there is no other cause found. So आप उसका twice a week biophysical भी कराओगे, उसका Doppler continue करोगे 2 weekly, and then you will take her to 38 weeks. अगर वो SG होता तो 37 लिखे गाइडलाइन में, वैसे ओलिगो का दवाइस लिखा हुआ है। मैडम जैसे कि माइल्ड और मॉडरेट पोली है, तो उसमें गाइडलाइन के जो टॉक था उसमें था कि कोई इंडक्शन ऑफ लेबर आप एज सच सिर्फ इस पे ही प्लान नहीं कर सकते कि उसको माइल्ड या मॉडरेट की बात करी मैडम, तो उसपे 38 पे, मतलब उन्होंने कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं गेस्टेशनल एज 38 से मेंशन। ऊपर आपने पॉली को नहीं लेके जाना। ठीक है मैडम, थैंक यू। वेलकम। जी सौम्या का लास्ट क्वेश्चन है, फिर इंशाल्लाह। मैम एक क्वेश्चन मेरा, मैडम ये जो ओलिगो में हम ये सपोर्टिव ट्रीटमेंट दे रहे होते हैं क्लिनिक्स पे या हॉस्पिटल्स में, ये एग्जाम में मेंशन करनी होती है वो जो अमाइनोवेल और देखो फेनिलैलन जी की जो? ओलिगो के अंदर इस टाइम पे लाइक आफ्टर 22 वीक्स और बियॉन्ड, इवन 16 to 18 वीक्स पे ही लोप्रिन या क्लेक्सन का रोल है, उसके बाद इतना नहीं है, लेकिन 22 के बाद तो रोल नहीं दिया हुआ किसी किताब में या गाइडलाइन में। नंबर 2 सपोर्टिव ट्रीटमेंट में इफ यू आर सेइंग अबाउट रिंगर और हाइड्रेशन, नो रोल। नंबर 3 एमनियो जो इन्फ्यूजन जो कहते हैं, उसका अगर कोई सवाल करे या कोई पेशेंट आपसे पूछे, या नो रोल, बिकॉज quickly उसमें it causes chorioamnionitis etc. So absolutely contraindication. Amnio reduction पॉली में अगर आप करने जा रहे हो तो 2-3 बातें आपने पॉलीहाइड्रोएमनियोस में एमनियो रिडक्शन से रिलेटेड बोलना है। नंबर 1 कंप्लीटली सिम्टोमेटिक रिलीफ के लिए किया जा रहा है, ठीक है। नंबर 2 आप पेशेंट को भी काउंसल करोगे कि लाइकर इज फॉर्म वेरी क्विकली इनसाइड द बॉडी, so it is just a temporary relief of symptoms. There are high chances that the liquor is formed again. इस वजह से आपने नोट किया होगा कि amnio reduction is not frequently done and is not very encouraged in the hospitals. हम सब जो अपनी ट्रेनिंग कर रहे होते हैं डिपार्टमेंट में, आप सब ने देखा अपने अपने डिपार्टमेंट में कितनी amnio reduction होती है, वेरी वेरी रेयर, क्योंकि it is not encouraged. Why? Because इधर amnio reduction की उधर ही चंद घंटों में भी लाइकर बन सकता है, राइट? तो वो रिप्लेस हो जाता है। उसके अलावा ऑफ कोर्स एमनियो रिडक्शन हैज गॉट फ्यू कॉम्प्लिकेशंस लाइक इन्फेक्शन एटसेट्रा, तो वो उसकी अपनी वो है, लेकिन एमनियो रिडक्शन के अंदर ये चीज भी इंपॉर्टेंट है कंसिडर करने वाली कि वो आपका जल्दी रिकवर हो जाता है, ठीक है। तो ये बात आपने बतानी, ठीक है। सो आई थिंक वी आर डन।